my name is Shivan Thaplyar from AUGMIC Nagnar Gopri. So let's start. Millets are a highly varied group of small-seeded grass which is grown all around the world as a cereal crop for human food and fodder. It belongs to Poaceae family. Millets are now the sixth most cereal grain in the world. So IYOM, International Year of Millets. The Government of India had proposed to United Nations to declare 2023 as the International Year of Millets. And the proposal of India was supported by 72 countries. And the United Nations General Assembly declared 2023 as the International Year of Millets on 5th March 2021. Millets are now termed as nutri-cereal crop. Millets are finding favor among farmers being climate smart crops that are drought resistant, which is growing in the areas with low rainfall and infertile soil. India is the largest producer of millets. India produces 12 million tons of millets annually. Based on the size of the grain, millets are further classified into two categories: major millets or smaller millets or minor millets. So major millets include sorghum, pearl millet, small millet like finger millet, little millet, kodo millet, foxtail millet, barnyard millet, grosso millet or ground top millet. So there are some health benefits of millet, which is as millet. So health benefits of millet: supports health and regular digestion, improves immunity and satiates hunger, helps to keep the blood sugar level low, fits a gluten-free diet and helps with weight loss, and it is also beneficial for obesity and it is also improve our digestive system. So our Uttarakhand government as well as our central government has organized Uttarakhand Anna Mahotsav or Uttarakhand Millet Festival to promote the Uttarakhand millet consumption and production. And on February 16, 2023, the Uttarakhand cabinet has approved the Uttarakhand millet scheme to promote the Uttarakhand traditional grain Mandwa or Changora. So now move to the conclusion. Millets are a type of grain that provides various health benefits to the body by containing vitamins and minerals. Also, it is rich in dietary fiber, which helps to keep the digestive system healthy. It can also be used as a good substitute for rice and wheat. This is why it is considered as one of the most best grain for weight loss in India. Initially, millets were thought to be the inferior for the wheat and rice, and it is also good substitute for the wheat or rice because they contain less gluten and are considered easy to digest. But some studies show that millets are beneficial as they contain essential nutrients such as protein, amino acid, insoluble salt, fiber, etc. that leads to better health and weight loss. पोषक अनाज है गुणात्मक खजाना, सस्ता सुगम ऐसे खेतों में उगाना. So our प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी also transform Indian thali into nutri thali. So with that I want my words: eat millets and stay healthy. Thank you. What is the family of millets? So Poaceae. Good. बेटा आपने बहुत अच्छा अपना प्रेजेंटेशन किया. इसमें मेरा क्वेश्चन है आपसे, टू हेल्थ बेनिफिट ऑफ द मिलेट्स. Sir, it reduces the risk of diabetes and low blood pressure, controls our blood pressure and improves our digestive system. गुड. मिलेट्स के प्रकार है ना, उनका मेजर मिलेट्स के नाम बताओ. That major millet है आपका sorghum और pearl millet. To the chief guests, judges and all teachers to present in science seminar, we know that not only India, the whole world are suffering from poverty, malnutrition, hunger and various types of disease. This problem is especially developing and underdeveloped countries. To deal with this problem, India has taken some steps to try to know some such food items are originated in India. Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman presented the fifth budget in which fruit production was discussed, which is the main topic of Science Seminar 2023. The main topic of Science Seminar
और डाइट फैट। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर घोषित किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ग्लोबल मिलेट सम्मेलन का उद्घाटन किया। भारत ने वर्ष 2018 को राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया और अब वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाने का भी निर्णय लिया। यह प्रस्ताव भारत के द्वारा पेश किया गया था, जिसमें 72 देशों द्वारा भारत का समर्थन किया गया। एक पुरानी कहावत के मुताबिक मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा सुख निरोगी होना है, लेकिन इसके लिए हमें अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने की जरूरत है, जो पौष्टिक आहार लेने से संभव हो सकता है। मिलेट्स में विभिन्न के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिस कारण यह मनुष्यों के लिए लाभदायक होता है। अब बात करते हैं मिलेट्स क्या है। मिलेट्स को श्री अन्न या मोटे अनाज के नाम से भी जाना जाता है। यह पौष्टिकता से भरपूर समृद्ध सूखा सहिष्णु फसल है, जो शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में उगाए जाते हैं। यह एक स्मॉल सीडेड वाली घास के प्रकार का होता है, जो वनस्पति प्रजाति पोएसी से संबंधित है तथा इसे C4 अनाजों में भी वर्गीकृत किया जाता है। यह खाद्य एवं पशु चारे का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। अब बात करते हैं मिलेट्स के इतिहास की। पुरातन काल से ही मिलेट्स भारतीयों के इतिहास का एक मुख्य हिस्सा रहा है। इसका जिक्र हमें यजुर्वेद में भी मिलता है तथा आज से 3000 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता में भी हमें मिलेट्स की खपत के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। 1960 से पहले मिलेट का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता था, किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बढ़ती आबादी की भूख को मिटाने के लिए गेहूं व चावल की खेती अत्यधिक की जाने लगी, जिस कारण मिलेट्स ह्रास व विलोपन की कगार पर पहुंच गए। किंतु 2018 के पश्चात मिलेट्स वापस से चलन में दिखाई देने लगे। अब बात करते हैं मिलेट्स के विशेष प्रकार की। मुख्य रूप से मिलेट्स में ज्वार, बाजरा, रागी, कंगनी, कुटकी, सावा व चैना जैसे कई मोटे अनाज शामिल हैं, जिनमें से कुछ भारतीय मूल के हैं तथा कुछ दूसरे देशों द्वारा भारत में लाए गए हैं। अब बात करते हैं मिलेट्स की न्यूट्रिशनल वैल्यू व हेल्थ बेनिफिट्स की। मिलेट्स एक पौष्टिक अनाज है। ये IIMR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च के अनुसार मिलेट्स में मुख्य रूप से प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट व डाइटरी फाइबर जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिस कारण इसे पोषण का पावर हाउस यानी सुपर फूड कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस जैसे और पोषक तत्व पाए जाते हैं। विटामिन B1, B2, B3 जैसे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, जो इसे मनुष्यों के अनुकूल बनाता है। अब बात करते हैं मिलेट्स की विशेषताओं की। मिलेट्स एक पौष्टिक अनाज है। यह आसानी से उगाया जा सकता है। इसे पानी, उर्वरक व कीटनाशकों की न्यूनतम आवश्यकता होती है। यह ग्लूटेन मुक्त होता है तथा इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स न्यूनतम होता है, जो इसे मधुमेह रोगियों के अनुकूल बनाता है। यह वजन घटाने में, BMI व उच्च रक्तचाप में भी सहायक पाया जाता है। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर घोषित किया गया है। कृषि मंत्रालय के द्वारा 10 अप्रैल 2018 को मिलेट्स को पोषण अनाज घोषित किया गया। इसके अतिरिक्त विभिन्न मिलेट्सों में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कंगनी कैल्शियम से भरपूर होता है, जो ऑस्टियोपोरोसिस जैसी डिजीज से हमें बचाता है। बाजरा विटामिन E का समृद्ध होता है तथा ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। कुटकी हृदय संबंधित रोगों से हमें बचाता है। रागी हड्डियों की मजबूती और वृद्धि के लिए लाभदायक होता है तथा एनीमिया जैसी डिजीज से लड़ने में मदद करता है। कोडो नर्वस सिस्टम को सुदृढ़ बनाता है। चीना डिप्रेशन को नियंत्रित करता है। ज्वार CBD जैसे खतरे से बचाता है। सावा
आयरन की उच्च मात्रा होती है तथा हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। इसके लिए भारत ने कुछ MSP भी निर्धारित की है, जैसे ज्वार के लिए 2,970 रुपीज़ पर क्विंटल, बाजरा के लिए 2,350 रुपीज़ पर क्विंटल, रागी के लिए 3,578 रुपीज़ पर क्विंटल की घोषणा की है, ताकि इसका उत्पादन करने वाले किसानों को भी लाभ प्राप्त हो सके। थैंक यू सर। आप ये बताइए कि जो चीना है वो क्या भारत का उत्पादक है, किसी बाहर से लिया गया? चाइना से लाया गया है भारत। ठीक है, थैंक यू सर। बेटा आपने एक वेद की बात की थी, यजुर्वेद में मिलेट्स फूड्स के बारे में कहा गया है, तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। थैंक यू सर। हेलो। कौन सा मिलेट कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है? कोलेस्ट्रॉल को बाजरा। थैंक यू मैम। A very good afternoon to all the respected judges, teachers and all my dear friends. My name is Aditi from Garrison. Today I am representing my thoughts about Shri Ann millets. The main objectives of my presentation is to spread awareness about millets and to explain why millets are a superfood. What are millets? Millets मोटे अनाज होते हैं जो पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। मिलेट्स को पोषण का पावर हाउस भी कहा जाता है। श्री अन्न का अर्थ होता है अनाजों में सर्वश्रेष्ठ। मिलेट्स में ज्वार, बाजरा, रागी, चीना, कोदो, कुटकी आदि की दालों को शामिल किया गया है। हालांकि 1960 के दशक में हरित क्रांति के दौरान चावल और गेहूं जैसे फसलों के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई, जिस कारण मिलेट्स जैसे सुपर फूड को दरकिनार कर दिया गया। ग्रीन रेवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा लॉस यह है कि ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले इंडिया में जो टोटल क्रॉप प्रोडक्शन होता था उसमें से 40% मिलेट्स होते थे, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद ये आंकड़ा गिरकर बहुत कम हो गया। सो व्हाई शुड वी यूज मिलेट्स? मिलेट्स को यूज करने के हमारे पास अनेक कारण हैं। ये जलवायु सहिष्णु होते हैं, कुपोषण को हराने के लिए मददगारी है, चावल की तुलना में काफी कम पानी यूज करते हैं और कम परिश्रम में अच्छी फसल देते हैं। इसके साथ साथ ये कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन्स, विटामिन्स और अन्य डाइजेस्टिव फाइबर्स भी इनमें पाए जाते हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण 3 मार्च 2021 को यूनाइटेड नेशंस ने साल 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर के रूप में घोषित किया और 5 मार्च 2021 और 27 दिसंबर को इंटरनेशनल मिलेट डे के रूप में मनाने की घोषणा की। भारत में 5 मार्च 2021 से राष्ट्रीय मोटा अनाज दिवस मनाया जा रहा है। NFSA की धारा 2(5) के तहत मिलेट्स को खाद्यान्न की परिभाषा में भी शामिल किया गया है। इसके अलावा मिलेट्स पर कुछ मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, जागरूकता फैलाना, दूसरा, उत्पादन सुधार लाना, तीसरा, निवेश के क्षेत्रीय गतिविधियों को बढ़ावा देना। मिलेट्स ग्लूटेन फ्री होते हैं और ग्लाइसेमिक इंडेक्स में लो होते हैं। भारत में जहां 35 लाख से अधिक बच्चे कुपोषण के शिकार हैं और 7 करोड़ से अधिक लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं, वहां मिलेट्स काफी उपयोगी साबित हो सकता है। इसके अतिरिक्त हार्ट डिजीजेस, हाई ब्लड प्रेशर और कैंसर जैसी बीमारियों से भी हमें बचने के लिए मदद करता है। Now India is the largest producer and second largest exporter of millet. Some information about millets. Sorghum, jowar. It is a protein-rich millet which is a very good antioxidant and it is also referred to Indian quinoa. Pearl millet, bajra. It is mostly used millet in which folic acid is present, which is used to cure anemia, and it also allergic reactions such like it causes itching and rashes to some people. Ragi, finger millet. It is considered as a superfood. Ragi has a good amount of calcium and it is one of the few food which is the natural source of vitamin D and has good amount of calcium which makes it best for boosting our bone health. Kodo millet, it is fiber-rich millet which is a good source of iron which acts as blood purifier. Now comes Millet Man of India. He claimed that there will not be enough food to feed the world if a shift to millet is not made because rice and wheat yields have decreased by 30% in the past 15 years. Because of the rising temperature which is fueled by the production of these crops. Any food that takes a longer time to break down the glucose are truly healthy, while millets take more
45 minutes, thus increasing the risk of diabetes. Now, millets की उपयोगिता को देखते हुए कृषि मंत्रालय ने 10 अप्रैल 2018 को इन्हें पोषक अनाज घोषित किया और इसके साथ साथ मिलेट्स को भारत की संसद की कैंटीन के मेन्यू में भी शामिल किया गया, जहां सूप, खिचड़ी और रोटी से लेकर रागी के इडली डोसा जैसे महामहिनों को परोसा जा रहा है। The contribution of India in the world's total population is 17.9%, whereas the fresh water we have is only 4%. So we need a crop which is nutritious and use less water to grow at the same time, for which millets are the best replacement. Why millets are a superfood? We can say they are a diet food, but they are a superfood because they help to. दीदी, आप ये बताएं कि ज्वार सबसे ज़्यादा कौन इंडिया में कौन से स्टेट में होता है और उसका साइंटिफिक नेम क्या है? सर, ज्वार राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है और ज्वार का साइंटिफिक नेम है सोरगम बाइफेरस। बहुत बार यूज किया आपने शब्द फूड सुपर फूड, तो फूड और सुपर फूड में क्या डिफरेंस है? सो फूड तो डाइट फैट भी फूड है, चाहे चाउमीन हो, मोमो, सब कुछ फूड है। सुपर फूड भी फूड है, लेकिन सुपर फूड में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स जो हमें ऊर्जा देते हैं, साथ ही साथ हमें न्यूट्रिएंट्स देते हैं जो हमारे जीने के लिए बहुत एसेंशियल है, और साथ ही साथ इनके हार्मफुल इफेक्ट्स थोड़ी कम होते हैं डाइट फैट के मुताबिक। गुड। मिलेट्स किस प्रकार जलवायु में सहिष्णु होता है? मैम, क्योंकि अगर ये मिलेट्स हर जगह ही हो रहे हैं, मिलेट्स क्लाइमेटिक रेजिलियंस होता है, मतलब ये हर प्रकार की जलवायु में अपने को ढाल देते हैं। इसके साथ साथ ये कम पानी यूज़ करते हैं, हमें पानी की बहुत ज़रूरत है और कम पानी भी यूज़ कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो राइस और व्हीट है वो जब उगता है तो वो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस को छोड़ता है जो ग्लोबल वार्मिंग में कारण बन रही है, लेकिन मिलेट्स ऐसा कुछ नहीं करते। थैंक यू। My name is Dan Mishra and I studied in class 10th of AUGIC Dewa. As you know that we all are gathered here to talk about millets. The topic is millet, a superfood or a diet fad. Now, for starting the presentation, I had a question for you. What is millet? Millet is a group of cereal grain which belongs to the Poaceae family, or commonly called the grain family, which has long grass and small seeded family. Now it has many advantages and many benefits of the millet. To talk the benefits of millet, before talking the benefits of millet, I had a question for you. How our fathers, forefathers and grandfathers lived 100 years with pride, 100 years without any health issues, without any heart attack, without any constipation, gastric and etc. The main factor is their diet. The diet is millet. In olden time, millet is consumed in very large variety. There are many types of millet, for example, ragi, bajra, and etc. Then, what are the benefits of millet? The main benefit of millet is they had a very good amount of protein, vitamin B, calcium, minerals, and other things. And the second benefit is it can be grown in the odd climatic condition, whether it is drought, whether it is heavy rainfall. That's why Rajasthan is the major producer of millets. Now, the third is they had a very less amount of gluten. Gluten is a protein which creates deficiency. The gluten is a protein which is found in the beets, in jaw, etc., which creates deficiency in our smaller intestine, the disease called celiac. Now, the fourth, it has a low glycemic index. It means that they are a relative ranking of carbohydrates and proteins and glucose, etc. because they had a very complex carbohydrate which is broken down in very smaller pieces, which can be broken down into a very larger time, etc. They can't affect it from climatic conditions, as I told you before. Now, in 12 million tons of bajra produced in our India, whereas today remained only 9.62 million tons. In 2004, ragi has 1.97 million tons and today is only 1.70 million tons, which is a very high decreasement. And the third is jowar.
which is 6.88 million ton in 2003 and 4, and it has remained only 4.23 million ton. About 2 million tons is decreased in the 2 years. Then what are the factor of decreasement? Then what are the factor of unavailability of resources? The resources are millets. Then the unavailability of millet is the 1960. The Green Revolution in 1960. Mr. M.S. Swaminathan, who started the Green Revolution in 1960, they categorized as millet. They motivated the farmers to grow only rice and wheat, whereas the other farmer who grows millet, they are decreased. The producers of millet is decreased in all over the Uttarakhand, in all over the country. Farmer forgot about traditional crop and grow crop only for their benefit. As I told you before, rice and wheat are beneficial for our health, but millet is more than rice and wheat. They are beneficial from rice and wheat, but in the more amount. Now, नयन, आपने एक वर्ड यूज किया हाइब्रिड. व्हाट डू यू मीन बाय हाइब्रिड मिलेट? सर, हाइब्रिड जैसे कोई मेनली जो क्रॉप्स होती है, उनमें अगर हम उनकी फसल, उनकी पैदावार से अगर हम सहमत नहीं हैं, तो फिर लेबोरेटरी में हम एक ऐसा बीज तैयार करते हैं जो कि हमारे अनुकूल ही उगे, जो कि हमारे अनुकूल ही हमें पैदावार दे. और ये जो उगा हुआ जो कि लेबोरेटरी में उगाया जाता है, जो इसका रिजल्ट बनता है, वो एक हाइब्रिड कहलाता है सर. एक शब्द कहा था पूसा, तो ये पूसा इंस्टीट्यूट कहाँ पे है भारत में? बेंगलुरु नहीं. हाँ? मिलेट्स के उत्पादन में वृद्धि हुई है, तो किस मिलेट्स के उत्पादन में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई? मैम वृद्धि नहीं मैम, इसमें भी टेबल जो किस में हुई है? मैम इसमें रागी में भी हुई है, ज्वार में भी हुई है. ज्यादा अनुपात में किसमें? मैम ज्यादा अनुपात में हुई है रागी की, और 1.70 मिलियन टन अभी है. राजकीय इंटर कॉलेज आलकोट से आप सभी के समक्ष मोटे अनाज के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं. तो दोस्तों, भारत मिलेट्स यानी मोटे अनाज प्राचीन काल से ही आहार का हिस्सा रहा है, लेकिन बढ़ती आबादी के कारण अनाज की आवश्यकता अधिक महसूस की जाने लगी, जिस कारण की ज्वार, बाजरा, गेहूं, चावल इत्यादि का उपयोग अधिक होने लगा और किसानों ने कीटनाशकों व उर्वरकों के इस्तेमाल के दौरान बम्पर फसल उत्पादित की जाने लगी. मोटे अनाज को गरीबों के भोजन में व पशुओं के चारे में इस्तेमाल किया जाने लगा. मोटे अनाज को गरीबों का भोजन भी कहा जाने लगा. दोस्तों, भारत दुनिया भर में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है. भारत के लगभग सभी राज्यों में मोटे अनाज की खेती की जाती है. मोटे अनाज की खेती अन्य फसलों के मुकाबले इसमें कम परिश्रम की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता भी कम होती है. मोटा अनाज, जिसे कि हम पारंपरिक अनाज या सुपर फूड के नाम से जाना जाता है, यह अपने पोषक गुणों एवं पोषक तत्वों के कारण खूब प्रासंगिक हुआ है. हाल ही में डॉक्टर खादरवली जी के प्रयासों के परिणाम स्वरूप हमारे देश में लगभग 10-12 वर्षों से लोगों को मोटे अनाज के प्रति जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है. इसी के परिणाम स्वरूप दुनिया के बहुत देशों ने भारत के इस प्रस्ताव पर स्वीकृति जागृत करके संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को मिलेट्स ईयर के रूप में घोषित किया है. दोस्तों, मोटा अनाज मानव सभ्यता के विकास से ही सेवन एवं उगाया जा रहा है. सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी मोटे अनाज का सेवन करते थे. दोस्तों, 60-70 के दशक तक हमारे देश में आम लोग मोटे अनाज को सेवन करते थे तथा इसको उगाते थे, लेकिन हरित क्रांति के पश्चात जब गेहूं, चावल को अधिक प्राथमिकता दी जाने लगी, तो लोगों ने मोटे अनाज को गरीबों का खाना बताकर मोटे अनाज का तिरस्कार किया, जिस कारण कि हमारी थाली से मोटा अनाज गायब हो गया. लेकिन आज लोग लाइफस्टाइल बीमारियों से जूझ रहे हैं, तो उसका सबसे कारगर समाधान है दोस्तों मोटा अनाज. जैसे मंडुए में आयरन, कैल्शियम, थायमिन, राइबो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं. कंगनी
आप ये बताएं कि आपने कुछ तत्वों के नाम बताए। मोटे अनाज में मिनरल्स और एक मिनरल होता है फास्फोरस। जी सर। सबसे ज़्यादा कौन कौन से मोटे अनाजों में होता है और क्या काम करता है हमारे शरीर में? बाजरा। जी। रागी। और फास्फोरस का काम बेटा आपने वो कहा ना कि एनीमिया की कमी, लोहे तत्व की कमी से एनीमिया रोग होता है। तो लोहे का सूत्र प्रति क्या है? सर हमारे शरीर में जब खून की कमी होती है तो उस कारण में एनीमिया रोग होता है। लोहा तत्व ना, जैसे सोना चांदी लोहा, तो जैसे सोने का सूत्र Au है, चांदी का Ag है, लोहे का क्या होगा बेटा? वही सारा हाँ Fe। ठीक है, गुड। घबराओ। सबसे ज्यादा मिलेट्स का उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान। And I am from GGIC Nalipur. I study in class 9. इस वर्ष विज्ञान संगोष्ठी का विषय है श्री अन्न मूल्यवर्धित अथवा भारतीय आहार। ये सिर्फ एक विषय नहीं है, ये है एक जरिया मोटे अनाज के प्रति जनता को जागरूक करने का। मोटे अनाज के प्रति जनता को जागरूक करने का एक जरिया है। यूनाइटेड स्टेट में भारत द्वारा ये सुझाव दिया गया था जनरल असेंबली में कि वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाया जाए। और ये जो यूनाइटेड स्टेट में जनरल असेंबली थी ये 2021 में चल रही थी। 2021 और 2020 में जो कोविड-19 चला था उस टाइम पे हमारे इम्यूनो सिस्टम के बारे में हमें पता चला कि हमारा इम्यूनो सिस्टम बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जितना इम्यूनो सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं था उन्हें ही ये कोविड हुआ था। तो उसी चीज़ को देखते हुए भारत ने जनरल असेंबली में इस चीज़ का सुझाव दिया था कि वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाया जाए। इस योजना की शुरुआत भारत और अन्य 72 देशों के सहयोग से वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मना करके हुई है और भारत इन 73 देशों में मोटे अनाज का अग्रणी उत्पादक है। अब जो श्री अन्न शब्द है, इस श्री अन्न शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो जो श्री अन्न शब्द है इसकी उत्पत्ति हुई है राजस्थान और कर्नाटक से। कैसे? भारत मोटे अनाज के उत्पादन में अग्रणी देश है और यहाँ के कर्नाटक और राजस्थान राज्य में सबसे ज्यादा मोटे अनाजों का उत्पादन होता है। तो यहाँ इसे श्री अन्न या फिर मोटी फसल या किसी दूसरे नाम से नहीं बोला जाता, इसे कहा जाता है श्री धान्य। और श्री धान्य शब्द से ही श्री अन्न शब्द की उत्पत्ति हुई है। अनाज 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है नेगेटिव ग्रेन, दूसरा होता है न्यूट्रल ग्रेन और तीसरा होता है पॉजिटिव ग्रेन। नेगेटिव ग्रेन में आते हैं जैसे गेहूं और चावल, जो हमारे शरीर के लिए जितने फायदेमंद होते हैं इससे कहीं ज़्यादा हमारे शरीर के नुकसानदायक होते हैं। इसमें 2 to 3% फाइबर्स होते हैं। दूसरा आता है न्यूट्रल ग्रेन, जिसमें आते हैं रागी, ज्वार, बाजरा। इसमें 3 to 5% फाइबर्स होते हैं। ये हमारे शरीर के लिए ना ही ज़्यादा नुकसानदायक और ना ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। तीसरा आता है पॉजिटिव ग्रेन, जिसे खाने से हमारे शरीर को फायदे ही फायदे होते हैं। इसमें 5 to 10% फाइबर्स होते हैं। इसमें आते हैं जैसे सावा, जिसे झंगोरा कहा जाता है, और कंगनी, गुट्टू, गुटकी आदि। मोटे अनाज के अंतर्गत न्यूट्रल और पॉजिटिव ग्रेन। मोटे अनाज के भारत में उगाए जाने वाले कई प्रकार हैं और इनमें से मुख्य है रागी, सावा जिसे झंगोरा भी कहा जाता है, बाजरा, कंगनी, गुट्टू, गुटकी, चीना आदि। और इन सभी को वो करने से, इन सभी को कंज्यूम करने से हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं तो वो नष्ट हो जाती है। अगर किसी के शरीर में बहुत किसी को डायबिटीज़ है या फिर कोई प्रॉब्लम है, वो इन्हें यूज़ करने से, इनको कंज्यूम करने से नष्ट हो जाती है। मोटे अनाज, अब मैं जिन मोटे अनाजों के बारे में बताने वाली हूँ वो है रागी, सावा और बाजरा। मोटे अनाज के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है बड़े दाने वाले अनाज और दूसरा होता है छोटे दाने वाले अनाज। बड़े दाने वाले अनाजों में आता है जैसे ज्वार और बाजरा, और छोटे दाने वाले अनाजों में आता है जैसे रागी, सावा, गुट्टू, गुटकी आदि। तो मैं रागी के बारे में अपने विचारों को प्रकट करना चाहती हूँ। जो रागी है उसे भारतीय का मूल मोटा अनाज माना जाता है, भारतीयों का, और ये उच्च पोषण वाला मोटा अनाज है। इसमें कैल्शियम की सबसे
अधिक मात्रा होती है और बाकी मोटे अनाजों की अपेक्षा। तो इस वजह से हमारी हड्डियों को भी मजबूत बनाता है और डायबिटीज जैसी बड़ी बड़ी पेट संबंधी समस्याओं को भी दूर करता है। और इसमें 100 ग्राम में एनर्जी होती है 328 जूल, प्रोटीन होता है 73 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट होता है 72 ग्राम, फूड फाइबर होता है 2.6 ग्राम, कैल्शियम होता है 344 मिलीग्राम और आयरन होता है 8.9 मिलीग्राम। अब मैं दूसरे अनाज के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे सांवा कहते हैं और इसे हम झंगोरा भी कहते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं बर्नयार्ड मिलेट। जो ये है, इसके पुराने ज़माने में काबुला, भात या फिर खीर भी बनाई जाती थी और इसमें सबसे ज़्यादा आयरन की मात्रा पाई जाती है और सभी मोटे अनाजों की अपेक्षा कर। इस वजह से हमारी खून की कमी को भी दूर करता है। इसमें बहुत बीमारियों से नाता जोड़ा, मोटा अनाज खाना छोड़ा, बीमारियों से नाता जोड़ा, दवाइयों के सहारे जीवन, भूल गए पुरखों का अन्न। यदि खाओगे ज्वार बाजरा मक्का, नहीं लगेगा बीमारियों का धक्का। यदि खाओगे कुटकी, थायराइड की होगी छुट्टी। यदि बनानी है मजबूत हड्डी, खाओ रागी, खेलो कबड्डी। कोदो का है बड़ा जोर, खून को करता है प्योर। मोटे अनाज में प्रोटीन भरपूर, कमजोरी को करता है। थैंक यू सो मच। अदिति, थैंक यू सर। आप ये बताएं कि जो आपने एक वर्ड यूज किया थायराइड, कौन सा ऐसा मोटा अनाज है जिससे थायराइड की बीमारी दूर हो सकती है? सर कुटकी। ठीक है। थैंक यू सर। बेटे आप बार यूज कर रहे थे फाइबर है ना, तो फाइबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? सर फाइबर को हिंदी में कहते हैं रेशमी। थैंक यू। ये हमारे ना पेट की जो समस्याएं होती है, मतलब जैसे हमारे खाने को हमारे पाचन तंत्र के लिए अच्छा बनाता है। गुड गुड। अच्छा, सबसे ज़्यादा फाइबर किस मिलेट्स में पाई जाती है? मैम झंगोरा। इसमें डाइटरी फाइबर का उच्च स्रोत कहा जाता है इसे। थैंक यू मैम। प्रभात में खुशी रावत बोलती हूँ। श्री अन्य एक मूल्यवर्धित पौष्टिक अथवा भारतीय आहार हम सब जानते हैं आज इस संगोष्ठी में चर्चा का मुख्य बिंदु बना है, परंतु क्यों? आइए जानते हैं। इस वर्ष भारत के प्रस्ताव देने पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इस वर्ष 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित कर दिया गया है। चूंकि भारत मोटा अनाज उत्पादन में एक अग्रणी देश है, तो हमारा दायित्व बन जाता है कि हम इसकी हर एक विश्ववासी को इसकी गुणवत्ता पौष्टिकता के बारे में बतलाएं। श्री अन्य यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमारे किसानों का एक बहुत अच्छा मित्र कहा जाता है, क्योंकि यह लगभग आसानी से आर्द्र भूमि, बंजर भूमि एवं जलवायु परिवर्तन में आसानी से उगाया जा सकता है। इसे अधिक सिंचाई की भी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जब किसान अपनी फसलें लगाते हैं तो उनके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है सिंचाई। हर क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता नहीं हो सकती है, हर जगह पानी नहीं होता है, इसलिए वह मोटे अनाज का उत्पादन कर सकते हैं और अपनी सिंचाई की समस्या को दूर कर सकते हैं। वैसे भी भारत इस वर्ष G20 की अध्यक्षता कर रहा है, तो यह हमारा दायित्व बन जाता है कि हम अपने भारत की सुनहरी संपदा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित कर सकें। हमारा भारत जो बहुत महान है, उसमें प्राचीन काल से ही मोटा अनाज खाया जाता है। मोटा अनाज को पोषण का शत्रु कहलाया जाता है। डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत लाभकारी है। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो दूसरी अन्य बीमारियों के लिए एक इन्विटेशन कार्ड के नाम पर काम करती है, क्योंकि यह बीमारी जब किसी को हो जाती है तो उसका स्वास्थ्य बजट भी बिगड़ जाता है। यह हमारी बहुत बड़ी बीमारी है। मोटा अनाज खाने से हमारी अन्य बीमारियां जैसे सूजन, गुठियां, हृदय रोग, रक्त रोग, फेफड़े रोग, इन अन्य रोगों से भी हमें निजात प्राप्त होता है। इसको ही देखते हुए हमारा आज का युवा जो किसी का गुलाम बन के कार्य नहीं करना चाहता है, वह किसी सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, वह इसको देखते हुए नए नए स्टार्टअप हो रहे हैं, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी मांग बढ़ती जा रही है दिन पर दिन। और इसको ही देखते हुए हमारे भारत में भी अगर इसका बढ़ चढ़कर निर्यात किया जाए तो बहुत सुनहरा मौका है हमारे पास, तो हमारे भारत को हम आगे ले जा सके, क्योंकि इससे हमारे हर एक जनमानस से लेकर हर एक किसान को इसका अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। मोटा अनाज जो हमारी निर्मला सीतारमण द्वारा श्री अन्न से संबोधित किया गया, क्योंकि श्री अन्न हमारी भारत की संपदा में एक ऐसा शब्द है जिसको सम्मान देने के लिए लगाया जाता है। किसान एक छोटा काम नहीं करता है, वह सबसे बड़ा काम करता है, दूसरों को अन्न पहुंचाता है। मोटा अनाज खाने से हमारे कई प्रकार के रोग दूर होते हैं। मोटा अनाज से कुछ महत्वपूर्ण तत्व प्राप्त होते हैं जो हमारे शरीर की जरूरत होती है, जैसे कि मैग्नीज, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, जिंक, आयोडीन। ये सब महत्वपूर्ण तत्व हमारे शरीर को बहुत आवश्यक होते हैं। आइए अब कुछ मोटे अनाजों के
फाइबर हमारी मांसपेशियों को मजबूत करता है, पचने में भारी होता है और इसका बुजुर्गों का सेवन कम करना चाहिए। कोदो, अभी तक कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा क्योंकि कोदा एक ऐसा मोटा अनाज है जो उत्तराखंड से बाहर उगाया जाता है और उत्तराखंड में कोदा उगाया जाता है। कोदो शरीर को एनर्जी देता है, साथ ही हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल में भी फायदेमंद है, साथ ही वजन भी कम करता है। आज जब हर एक व्यक्ति 2023 में वर्तमान समय में हेल्थ कॉन्शियस हो रहा है तो उसे मोटे अनाज के गुणों के बारे में पता चल रहा है, वह उन्हें प्राप्त कर पा रहा है। मोटा अनाज जो कभी किसी गरीब किसान की थाली का अन्न कहा जाता था, आज वह उच्च डाइट चार्ट के वर्ग में सम्मिलित हो रहा है। आपने काफ़ी गुण बताए मोटे अनाज के, इसमें से एक विशेषता बताई आपकी, मोटे अनाज के द्वारा हमारे जोड़ों का दर्द भी ठीक होता है। वो कौन सा अनाज है? ज्वार। ठीक। बेटा जैसे आपने अपने संबोधन में भी कहा और फाइल में भी है, आपने लगा रखा है उसको रामदाना। तो रामदाना को हम उत्तराखंड या क्षेत्रीय भाषा में क्या बोलते हैं? सर रामदाना का रामदानी ऐसे कुछ राम क्षेत्रीय भाषा में भी हम कुछ नाम बोलते हैं उसको, आपने देखा होगा, आपके घरों में भी बहुत होता होगा, लेकिन वहाँ रामदाना नहीं बोलते उसको। बाजरा नहीं नहीं, जब रक्त की कमी को पूरा करने के लिए कौन सा मिलेट्स यूज करें? रक्त की कमी को पूरा करने के लिए हम कुछ थैंक यू। मैं कुमारी अदिति नौटियाल, मेरा कोड आर है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हम सभी यहाँ पर श्री अन्न एक मूल्यवर्धित पौष्टिक अथवा भ्रांति आर विषय पर विज्ञान संगोष्ठी हेतु एकत्रित हुए हैं। इस विषय पर अपने विचार रखने से पहले मैं सर्वप्रथम आप सभी सम्मानित जनों का ध्यान इस बात की ओर ले जाना चाहूंगी कि आज विज्ञान तकनीकी के इस युग में जहाँ हमारे वैज्ञानिकों ने इतनी उन्नति कर ली है कि आज चंद्रयान 3 के जरिए हम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले विश्व में प्रथम बन गए हैं और चिकित्सा के क्षेत्र में प्रगति करके बड़ी से बड़ी लाइलाज बीमारी का इलाज भी संभव हो पाया है। तो भी मनुष्य की आयु 50 से 70 के बीच ही क्यों? प्राचीन समय में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं न होने के बावजूद भी लोग आरोग्य और लंबी आयु कैसे जीते थे? उनकी आयु 90 से 100 तक होती थी। तो इसका
मोटे अनाज के द्वारा हम इसमें नवाचार क्या क्या ला सकते हैं, इनोवेशन क्या कर सकते हैं, ताकि हर बच्चे के रेडी टू ईट, रेडी टू फूड हम इसको बना सकते हैं। पहले तो हम ये जंक फूड पर रोक लगा के मोटे अनाज को रेडीमेड फूड बना सकते हैं इससे, फास्ट फूड। ठीक, कुछ नाम बताएंगे आप? जैसे हम फास्ट फूड क्या क्या बना सकते हैं इसके बाद? गोदों से हम बिस्किट बना सकते हैं, मोमोज बना सकते हैं, पास्ता बना सकते हैं। ठीक, बेटा आपने बहुत बार यूज किया, बहुत सारे तत्वों का नाम आपने लिया, उसमें कैल्शियम एक तत्व है, तो कैल्शियम तत्व का संकेत या सूत्र क्या है? हाँ, गुड। शरीर की मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है ना, उसको कौन सा विटामिन वो करता है, कंट्रोल करता है, ये मिलेट्स में पाया जाता है। दुकान भी लगी होगी। अब सीधा आप अपना सामान यहीं पे छोड़ेंगे। हमारे जनपदीय कोऑर्डिनेटर अस्पाल जी के अथक प्रयासों से, जबकि कह रहे थे कि जनपद से भी कोई पैसा वैसा भी नहीं आया, पर आपने अपने ही संसाधनों से सब प्रतिभागियों के लिए, गाइड टीचर्स के लिए, पूरे सभी के लिए भोजन की व्यवस्था की है। तो मेरे प्रतिभागी बच्चों से निवेदन है कि अपना सामान यहीं रखें और सीधा भोजन स्टॉल पे चलिए। सुरसुरा कुरगड़िए गाँव जना तोड़े मोती घर जाना बन जानिया मैं जना छोड़े मदना, तू जना तोड़े मोती माँ मैं जना छोड़े मदना। सुरसुरा कुरगड़िए गाँव जना तोड़े मोती माँ, घर जाना बन जानिया मैं जना छोड़े मदना। तेरे मेरा बाबू दयाला हो जने कहे मोती माँ, बाबू मेरा हौलदार बच मेरा रे मदना, हो जने कहे मोती माँ, बच मेरा रे मदना। सुरसुरा कुरगड़िए गाँव जना तोड़े मोती माँ, घर जाना बन जानिया मैं जना छोड़े मदना। अरे रे रे गदुआ साग मडुआ रोट ले रयूं खाए मदना, पानर को ठंडो पानी गुड़ का टक लाए मोती माँ, मैं ले रयूं खाए मदना। तू गुड़ का टक लाए मोती माँ, घर जाना बन जानिया मैं जना छोड़े मोती माँ, तेरी खुटों की पंजाबी छम छमा बाज मोती माँ, तेरी आँखों को चमकत भलो छाजी मदना, छम छमा बाज मोती माँ, कत भलो छाजी मदना। सुरसुरा कुरगड़िए गाँव जना तोड़े मोती माँ, घर जाना बन जानिया मैं जना छोड़े मदना। घासरील गीत गाई पहाड़ों का धुर मदना, उदासी लोगा में लगो घुघुती की घुर मोती माँ, पहाड़ों का धुर मदना। घुघुती की घुर मोती माँ, घर जाना बन जानिया मैं जना। लेकिन जहाँ मेरा कंप्यूटर कक्ष है वहाँ इन्वर्टर प्रिंट आउट नहीं दे पा रहा, तो प्रिंट नहीं हो पा रहा है, रिजल्ट बाहर नहीं आ रहा है। तो इसलिए मैंने पेन ड्राइव पर रिजल्ट यहीं पर आप सबको दिखा रहा हूँ ना, आप सब उसको देख लीजिए, प्रथम द्वितीय तृतीय और अपने बच्चे की मार्क्स भी देख लीजिए। और जैसे आप रिजल्ट देख लेंगे बच्चे तालियां बजा देंगे। जो बच्चे प्रथम द्वितीय तृतीय निकले हैं उनको 3 मोमेंटो रखे हैं, प्रमाण पत्र और मेडल सभी बच्चों के लिए हैं। सभी बच्चों को प्रमाण पत्र मिलेंगे, सभी बच्चों को मेडल मिलेंगे। जो बच्चे फर्स्ट
थर्ड निकले, बहुत बहुत बधाई। राज्य स्तर पे प्रथम और द्वितीय बच्चा प्रतिभाग करेगा। आपको हार्दिक शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद देते हैं पूरे सभी शिक्षक साथियों की ओर से कि आप जनपद का प्रतिनिधित्व करके स्टेट में भी अपने जनपद का नाम रोशन करेंगे, अपने विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। जो बच्चे प्रथम द्वितीय तृतीय नहीं निकले हैं तो ऐसा निराश होने की जरूरत नहीं है, आप भी उन्हीं के बराबर हैं, लेकिन एक मिनट दो ही ने आगे जाना है तो थोड़ा सा अंतर में आप पीछे रहते हो, आप निराश होने की आपको आवश्यकता नहीं। मैं आपके सामने रिजल्ट भंडारी सर, जरा आप आए सर। 78 नंबर आर्यन जोशीमठ 70.5, नीलम नैगवाड़ 82 नंबर, अंशिका नैगवाड़ 75 नंबर, काजल नंगानगर 81.5 नंबर, कामना नंगानगर कुंजुम 62.33 नंबर, शिवम नाना पोखरी 79.17, कामनी थालाबेट पोखरी 74.17, खुशी कोटी चांदपुर 84.83 तृतीय स्थान, अदिति नोटी कड़पड़िया 82.64, सपना राजीव गांधी नवोदय विद्यालय गैरसैंण 88.5 प्रथम स्थान, अदिति JSNH गैरसैंण 85.12 द्वितीय स्थान, गैरसैंण ने बाजी मारी प्रथम द्वितीय स्थान पर। अदिति नारायण बगड़ राजकीय बालिका इंटर कॉलेज नारायण बगड़ 81.67, तमन्ना गौड़ अब्सेंट, संजना जयसी आलकोट 80.17, अभिषेक देवराड़ी अब्सेंट, नयन मिश्रा देवाल 76.83, अक्षर टपोला अब्सेंट 00 क्योंकि वो एक्सएससी में उपस्थित है इसलिए 00 उसको उपस्थित कब्जा किया। तो आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि आप राज्य स्तर में भी इसी तरह प्रतिभाग करेंगे। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा 2 मिनट के लिए, ज्यादा नहीं। फर्स्ट का नाम है JSN गैरसैंण अदिति। तृतीय स्थान है खुशी रायका कोटी चांदपुर, लोग को बधाई है। और अध्यापक साथियों, विदुषी अध्यापिका बहनों और प्यारे बच्चों, यहाँ पे मिलेट्स पे जो आप लोगों का संबोधन था, सबका संबोधन बहुत अच्छा था, सब बच्चों का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। एक निर्णायक के रूप में जब हम निर्णय करते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन बच्चा फर्स्ट होगा, कौन बच्चा सेकंड होगा, लेकिन उसके बावजूद भी हमने माँ सरस्वती, हंसवाहिनी सरस्वती को साक्षी मान करके एक अच्छा निर्णय देने की कोशिश की है और अच्छा अपने स्तर से एक बहुत ही अच्छा निर्णय हम लोगों ने दिया है, क्योंकि ये एक ओपन प्रतियोगिता थी। इसमें बहुत बच्चों के पास मैटर था वो बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ बच्चों के पास फ्लो नहीं था। कुछ बच्चों के पास फ्लो अच्छा था लेकिन उनके अंदर कॉन्फिडेंस उस स्तर का नहीं था। तो जो बच्चे प्रेजेंटेशन जब आपका होता है तो सबसे पहले आपके पास देखा जाता है आपका कॉन्फिडेंस, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसमें मैटर उतना काउंट नहीं करता है जितना आपका परफॉर्मेंस का, आपका कॉन्फिडेंस काउंट करता है, आपके हाव भाव काउंट करते हैं। आप जब किसी चीज को संबोधन किसी चीज का करते हैं, आपके हाथ किस स्टाइल में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इन सारी चीजों को देखते हुए उसके बावजूद जो है हम लोगों ने जजमेंट किया। और जैसे मैंने आपको बताया, कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा मैटर उनके पास था लेकिन प्रेजेंटेशन उतना अच्छा नहीं रहा उनका। कुछ बच्चों का प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छा था लेकिन उनके हाव भाव और प्लस उनका जो मैटर था उनके पास वो उतना इनोवेटिव नहीं था, क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्ट बने हैं। नवाचार वाला जो पार्ट था इसमें, इस पर बहुत कम बच्चों ने फोकस किया अपने आप को। जिन बच्चों ने इस पर ज़्यादा फोकस किया वो उन बच्चों को अच्छी मार्क्स मिले हैं। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि किसी भी गतिविधि में, किसी भी प्रतियोगिता में प्रतिभाग करना बहुत बड़ी बात है।
अपने आप को हमेशा श्रेष्ठ समझो। जो जिन बच्चों ने प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किया वो अब स्टेट में प्रतिभाग करेंगे और अच्छा निखार और अच्छी तैयारी जो है वो अपनी करते रहेंगे, जिससे स्टेट में उन बच्चों का सिलेक्शन हो और वो बच्चे फिर राष्ट्रीय स्तर पर जाएं। हमारे आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद। इस कार्यक्रम के जिला समन्वयक आदरणीय सवाल जी, जजेस महोदय, श्री नेगी जी, बहन मैठाणी जी, गाइड टीचर्स एवं विदुषी बहनें और प्यारे प्रतिभागी छात्र छात्राओं, जो आपका ये प्रदर्शन रहा काबिले तारीफ रहा, बहुत अच्छा रहा। सारे बच्चों ने इतने अच्छे तरीके से अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया कि हमें निर्णय लेने में बहुत कठिनाई हुई। हमारी तरफ से सारे फर्स्ट हैं और कई ऐसे बिंदु रहे जिनमें थोड़ा कमियां देखने को मिली, लेकिन आपने पूरा अपना भरसक प्रयास किया। इसके लिए मैं आपके गाइड टीचर को बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और जिन बच्चों ने राज्य स्तर पर अपना स्थान प्राप्त किया, उन बच्चों के गाइड टीचर और उनको अग्रिम आगे की बधाई देता हूं कि आप राज्य स्तर पर भी सफल रहें। प्यारे छात्रों, मिलेट्स ए सुपर फूड और ए डाइट फैट, तो ये जो टॉपिक है काफी बच्चों ने पूरा कवर किया इसको, लेकिन कुछ बच्चों ने एक ही पार्ट उसका दिया, उस पर ज्यादा फोकस किया। जो ये धांती आहार है, डाइट फैट है, इसके बारे में कुछ बच्चों ने ज्यादा उसको फोकस नहीं किया। तो मैं ये चाहूँगा कि जो प्रतिभागी राज्य स्तर पर स्थान जिन्होंने प्राप्त किया है कि वो इन चीज़ों पर भी फोकस करें। और इसमें जो नवाचार है, मिलेट से हम नए नए क्या क्या उत्पाद हम तैयार कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा फोकस करने की आवश्यकता है। क्योंकि जो परंपरागत मिलेट्स हैं उसमें थोड़ा भ्रांति है, जैसे कि उस टॉपिक के बाद में दिया गया है, आपने उसको कैसे सुपर फूड बनाना है, कैसे हर व्यक्ति के थाली में उसको लाना है, इसके लिए थोड़ा नवाचार की आवश्यकता है। तो थोड़ा आप इस पर भी शोध कीजिए, अध्ययन कीजिए, सभी के लिए है। और हमारे प्रधानमंत्री जी का भी यही उद्देश्य है कि हम मिलेट्स को ज़्यादा बढ़ावा दें, ताकि हम निरोग रहने के साथ साथ जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी मजबूत हो। तो मेरा यही सुझाव है, जो बच्चे राज्य स्तर पर जाएंगे कि वो थोड़ा अपने टॉपिक को पूरा कवर करें, और जो उसमें नयापन है, नवाचार है, इनोवेशन है, उसके बारे में जरूर 2-4 पॉइंट उसमें तैयार रखें कि कैसे हम उसको फास्ट फूड के रूप में या डाइट फूड जो भी है उसमें उसको बनाएं। तो बाकी सभी का मैं जो हमारे जो गाइड टीचर हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतने दूर से वो आए हैं। बच्चों की यहाँ लाने में भी बड़ी समस्या होती है, बरसात का मौसम है। और विशेष धन्यवाद मैं असवाल सर का देता हूँ कि जिन्होंने इतना सारा काम अपने कंधे पर ले रखा है, और आगे भी अगर हमसे कुछ आपके कार्यक्रम में हम अगर योगदान दें या कुछ भी हमसे कोई सहायता हो तो हम उसके लिए तैयार हैं।
इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। कर दूंगा, लेकिन अकेले काम नहीं हो पाता है, सभी साथियों का सहयोग चाहिए और आप लोगों के सहयोग के दम पर ही मैं ये काम कर पाता हूँ, करा पाता हूँ। जो ग्रांड पोर्टल है, पोर्टल नंबर, उसके बगल वाला जो कॉलम है उसमें लिखित परीक्षा के मार्क्स है। तो पहले वाला बालिका के नंबर है 6, दूसरे की है 5.5, तीसरे की है 3, चौथे की है 6, पांचवें की 7.5, छठे की 4, फिर शिवम की 5, फिर अगला 4.5, फिर खुशी 4.5, अदिति 7 और जो प्रथम स्थान है उसकी 8.5, हाईएस्ट नंबर इसकी की है 8.5 और सेकंड जो निकली इसकी है 7.5, फिर 6 नंबर है, फिर 0, फिर 4.5, फिर 0 का मतलब जो एब्सेंट और 5.5। तो लिखित में सबसे ज्यादा 8.5 और 7.5 और ये दोनों, और तीसरी है काजल नंदानगर की। तो ये तीनों बच्चे, 2 गैरसैंण के और नंदानगर के। तो इस बार ब्लॉक में जब इसका चार्ट बनना था तो वहाँ 3 गुना हो रहा था, वहाँ बच्चा बाजी मार रहा था। प्रेजेंटेशन वाला, अच्छा प्रेजेंटेशन वाला भी थोड़ा घट रहा था और वो 3 गुना हो रहा था। इस बात को मैंने एससीईआरटी में रखा कि आपने कैसा प्रपत्र बनाया है, तो तब उन्होंने कहा वास्तव में गलती हो गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो प्रपत्र ऐसा चला गया। तो इसलिए जनपद से इसको सुधारा गया है। तो अब सही मार्किंग का पूरी 100 नंबर 300 कर दिया था उन्होंने, बच्चा जंप कर रहा था। नंबर 1 का अंतर है, लेकिन वह 3 गुना में 3 नंबर का अंतर है, इसलिए वो प्रेजेंटेशन उसका अच्छा होने के बावजूद वो लिखित में जंप कर रहा था। तो अब सही चार्ट बना है, तो सभी को बहुत बहुत बधाई। मैं विद्यालय हमारा जा चुका है, प्रधानाचार्य दूरस्थ क्षेत्र की तीनों जजों को आगे, निर्णायक को आगे बुलाना चाहूंगा। एक प्रमाण पत्र और विद्यालय की तरफ से संगाराव मैडम आप प्रतिनिधि के रूप में इन तीनों लोगों को एक प्रमाण पत्र। धरती ओ मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं। गम को सो दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, लगे कहीं शहनाई बजे। आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती।
शिक्षक साथियों, शिक्षका बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका राज्य स्तरीय विज्ञान संगोष्ठी में भी स्वागत किया जाएगा, तो आप सभी सहयोग के लिए तत्पर रहे। एक बार पुनः सबका बहुत बहुत धन्यवाद।